students, I am Chaya Chauhan, Assistant Professor Pharmaceutical Chemistry, RKGIT College, Ghaziabad. I am taking your lecture on Medicinal Chemistry 1. The subject code is BP402T and this is the third lecture from Unit 1 and the topic of this lecture is physicochemical properties of the drug in relation to the biological action. So, we are continuing with the lecture 2 in which we have discussed some of the physicochemical properties. Now, the next parameter that is we are going to study is the partition coefficient. So, what is the partition coefficient? It is equilibrium constant and that is represented by capital P, and it is the ratio between the concentration of the drug in the lipid layer and concentration of the drug in the water layer. How we will determine it? So, you see we take two liquids, two immiscible liquid, like one is the water and another one is the ether. Two immiscible liquid has been taken, and when we add the drug to this, suppose X drug is added to these two liquids. So, when we add this drug, it will goes to this solution, this solvent, and it will partition between these two. It will partition between these two solvents according to its solubility. So, when it has been partitioned and equilibrium has been established, then value is calculated between the concentration of the drug in lipid layer, or we can say the non-polar solvent, and then concentration of the drug in the water layer. So, this ratio is called as partition coefficient that we denote by the P, capital P. Now, we are going to study the drug in the biological system. So, this layer has been replaced with the lipid. This layer, this ether layer we have replaced with the lipid. So, biological membrane, like biological membrane are the lipid layer, they are bilipid layer, and in between this is protein and outside it is lipid. So, this is lipid layer, and here it is the fluid where drug is dissolved, here drug is dissolved. So, this water layer is this and it is the lipid layer. So, we have to calculate the concentration in the lipid layer and we have to calculate the concentration in the water layer. So, this concentration is calculated as the P, constant P, that is partition coefficient, but it is very difficult to calculate this concentration between the lipid layer and the water layer in the biological system. So, this lipid layer has been changed with the octanol water system. Now, it has been changed with the octanol. So, lipid layer, now lipid layer is changed with the octanol. So, octanol क्या है? octanol हमारा 8 कार्बन की चेन है, CH2 होल्ड 6 CH2OH, और इसके फाइनल पॉइंट पे यहाँ भी पोलर हेड लगा हुआ है. सो जैसे हमारी लिपिड की लेयर होती है, ये हमारा पोलर हेड है और ये आगे चेन है, ये लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की. सो लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ये रिजेंबल कर रही है हमारे इसके साथ, ठीक है, एल्काइल चेन के साथ, और जो ये OH है ये हमारा पोलर हेड हो गया. सो ये जो ऑक्टेनॉल है ये किसको मिमिक कर रहा है? इट मिमिकिंग द लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम. और जो हमारा वाटर सिस्टम है, वाटर सिस्टम हम क्या लेते हैं? वाटर सिस्टम हम लेते हैं pH 7.4 phosphate buffer. This we take phosphate buffer and then calculate drug partition coefficient is calculated by calculating the concentration of the drug in the water layer and concentration of the drug in the lipid layer. So, it is the ratio of the concentration of the drug in the octanol to the ratio of the drug in the water layer. So, this formula we calculate from the octanol and phosphate buffer system. So, what is the importance of partition coefficient when we are calculating with this octanol and water? So, what is the importance of an octanol water system? So, it will serve as a measure of the relationship between the lipophilicity and hydrophilicity. क्यों? क्योंकि हम एक तरफ क्या ले रहे हैं, हम अपना लिपोफिलिक कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं? ऑक्टेनॉल. तो हमें ऑक्टेनॉल की सॉलिबिलिटी से हमें पता चलेगा कि ड्रग कितनी लिपोफिलिक है,
और जो हमारी वाटर सॉल्युबिलिटी है, फॉस्फेट बफर pH 4 ले रहे हैं, सो वो क्या बताएगा, हाइड्रोफिलिसिटी, कि वाटर सॉल्युबल कंटेंट कितना है ड्रग के अंदर, सब्सटेंस कितना हाइड्रोफिलिक है। सो इस रिलेशनशिप को हम एन ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम से मेजर कर सकते हैं। अगर हमारे जो ये P की वैल्यू मोर देन 1 आती है, जो P है हमारा वो मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, देन ये हमारी जो ड्रग होगी ये ज़्यादा लिपोफिलिक होगी, इसमें लिपोफिलिक करेक्टर या लिपोफिलिक फंक्शनल ग्रुप या नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा होंगे और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस करेगी और उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा। अगर ड्रग का हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, वो लेस देन 1 है, सो हमारी जो ड्रग है वो हमारी कैसी होगी, लिपोफिलिक, जो हमारी ड्रग है वो कैसी होगी, कम लिपोफिलिक होगी, इट विल बी लेस लिपोफिलिक एंड मोर हाइड्रोफिलिक। और जब ये ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगी तो ड्रग हमारी सोल्यूशन में तो होगी, फ्लूइड में तो होगी, बट इट विल नॉट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस नहीं करेगी जितनी लिपोफिलिक ड्रग होती, तो इसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। सो पार्टीशन कोफिशिएंट को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्टेनॉल वाटर सिस्टम, सो ये एक मेजरमेंट है हमारी हाइड्रोफिलिसिटी एंड लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग। और कैसे हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी अफेक्ट करती हैं ड्रग को, ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, जो जितनी ज़्यादा हाइड्रोफिलिक करेक्टर होगा ड्रग उतना कम एब्जॉर्ब होगी और उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी कम होगी। जो ड्रग हमारी जितनी ज़्यादा लिपोफिलिक होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस करेगी और जो ड्रग है हमारी उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। सो ये जो वैल्यू है ये हमें बताती है कि हमारी जो ड्रग है वो कैसे हमारे फैटिश टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो सकती है, और ये हमें ऐसे बताती है कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग का हमारे टिश्यूज़ में होगा। जितना ज़्यादा लिपोफिलिक करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी बिटवीन द टिश्यूज़ और उतना ही हमारा जो ड्रग है वो ईजिली लिपोफिलिक बायो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगी। और जो अगर ड्रग हमारी वाटर सॉल्युबल ज़्यादा है तो वो साइटोसोल में ही पड़ी रहेगी, इट विल नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो इट विल नॉट गेट एक्यूमुलेट इनटू द फैटी टिश्यूज़, उसमें एक्यूमुलेट नहीं होगी। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है पार्टीशन कोफिशिएंट की। सो पार्टीशन कोफिशिएंट की क्या सिग्निफिकेंस है कि अगर हमारी ड्रग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है सो ये बॉडी फ्लूइड्स में सॉल्युबलाइज होनी चाहिए, पहला तो ये, तो मतलब ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक भी होनी चाहिए, है ना। अगर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, सो हमने पहले सॉल्युबिलिटी में भी पढ़ा था कि ड्रग अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचाना है, क्रॉस करना है, डिफ्यूजन होना है थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रग का, सो इट शुड बी सॉल्युबलाइज्ड इन दी बॉडी फ्लूइड। जब तक ये सॉल्युबलाइज नहीं होगी इट विल नॉट क्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके थ्रू डिफ्यूज नहीं होगी एंड विल नॉट रीच टू दी टारगेट। सो ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इसमें क्या है, पोलर हाइड्रोफिलिक ड्रग, जितने अगर हमारा हाइड्रोफिलिक करेक्टर ज़्यादा हो जाता है तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग को हम ब्लड में एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो तो कोई पैरामीटर नहीं है सॉल्युबिलिटी के लिए, तो हम डायरेक्टली उसको ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन वहीं पर ही हो रहा है। यहाँ पे ड्रग को एब्जॉर्ब होना है तो उसके लिए हमें ड्रग का क्या ऐसा है कि हाइड्रोफिलिसिटी के साथ उसको लिपोफिलिक भी होना चाहिए और दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि पहले फर्स्टली क्या है, ड्रग को एब्जॉर्ब होना है एंड देन सेकेंडली इट हैज़ टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो पहले ड्रग को हाइड्रोफिलिक करेक्टर चाहिए, उसके बाद ड्रग का लिपोफिलिक करेक्टर चाहिए फॉर क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जितनी ज़्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी उतना ही ईजिली हमारी ड्रग जो मेम्ब्रेन है उसको डिफ्यूज़ करेगी एंड इट विल रीच टू द टारगेट। और जितना कम ये पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी उतना ही ड्रग हाइड्रोफिलिक होगी और ये हमारी साइटोसोल में रहेगी और डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कम होगा। सो जो टारगेट पे जो ड्रग रीच करेगी दैट विल बी इन द लेस अमाउंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन दैट हैज़ गुड पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू। सो नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी इज द कॉम्प्लेक्सेशन और वी कैन से इट चीलेशन। सो कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है कि मेटल आयन है हमारे, मेटल आयन को हम रिप्रेजेंट कर लें, एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मेटल आयन है और ये किसी लीगेंड के साथ में कोऑर्डिनेट या कोवेलेंट बॉन्ड बना के एक कॉम्प्लेक्स बना रही है तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स।
ये हमारी मेटल आयन है और ये हमारे पास एक लिगेंड है X। सो जो ये लिगेंड है ये हमारे पास ऐसा कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, या लिगेंड हमारा ऐसा कोई हो सकता है जिसमें सल्फर प्रेजेंट हो, या लाइक दैट। जो कैसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऐसा कोई कंपाउंड होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स और ग्रुप्स या रेडिकल्स या आयंस प्रेजेंट हो, जिन पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, दे कैन डोनेट और दे कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विद द मेटल आयन। क्योंकि मेटल आयन हमेशा कैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। ये कैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो ऑलवेज दे हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके लिए कोई ऐसा लिगेंड चाहिए, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट चाहिए जिसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हों या ऐसे एटम्स हों, मॉलिक्यूल हो जिस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों। जब उस पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे दे विल हैव द टेंडेंसी टू गिव दिस इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स सारे पूरे ट्रांसफ़र हो रहे हैं मेटल पे, तो क्या बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इफ़ देयर इज़ अ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड नाउ अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये दोनों के शेयरिंग से बन रहा है हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, देन इट विल बी अ कोवेलेंट बॉन्ड। So in the complex formation there may be a coordinate bond or there may be a coordinate bond or may be covalent bond. So these are, if bond is in between these two is by the donation of the electron, then it is called coordinate. If it is by the sharing of the electron, then it is covalent, or any one type of the bond or any both of the type of the bond may be present in the complex. अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है, जो हमारा कंपाउंड है जिससे जो कॉम्प्लेक्स जो है बना रहा है मेटल के साथ मिलके, सो वो जो लिगेंड है उसके टाइप्स होते हैं। इट मे बी मोनो, मतलब एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही ये दे सकता है। ये मे बी बाई, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, दो इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं दो। और पॉली, अगर दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो जो हमारा कंपाउंड होगा, जो हमारा ये लिगेंड होगा, इट मे बी मोनोडेंटेट, इट मे बी बाईडेंटेट और इट मे बी पॉलीडेंटेट। कैसे कह रहे हैं हम उनको, मोनो, बाई और पॉली, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ग्रुप्स और एटम्स प्रेजेंट दैट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप्स और एटम्स प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड के अंदर या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इसको हम मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट और पॉलीडेंटेट कहते हैं। सो जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, अभी तक हम उसको क्या बोल रहे हैं, लिगेंड बोल रहे हैं। और लिगेंड कैसा हो सकता है, मोनो हो सकता है, बाई हो सकता है, पॉली हो सकता है। और जो लिगेंड है वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या एटम्स या जो भी प्रेजेंट हैं वो कितने हैं। अब ये जो लिगेंड है इसको हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कह रहे हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मेटल के साथ मिलके कोई रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, दो या दो से ज़्यादा रिंग फॉर्मुलेट कर रहा है, सो तब हम उसको क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे चीलेटिंग एजेंट। और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे चीलेट। और जो ये प्रोसेस होगा उसे हम क्या कहते हैं, चीलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, चीलेशन। सो ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि रिंग फॉर्मेशन से बन रहा है, जिसमें रिंग फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं चीलेट। और जो ये प्रोसेस है उसको हम कहते हैं चीलेशन। और जो हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, जो लिगेंड है, उसको हम कहेंगे चीलेटिंग एजेंट। अगर ये हमारा वाटर सॉल्युबल बन रहा है तो तब हम उसको क्या कहते हैं, सिक्वेस्टरिंग एजेंट। या अगर ये चीलेट हमारा वाटर सॉल्युबल बनेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, सिक्वेस्टरिंग एजेंट। तो सिग्निफिकेंस क्या है हमारी कॉम्प्लेक्सेशन की या चीलेशन की, तो सिग्निफिकेंस जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में कई बार तो ड्रग के एक्शन में जो है होती है, और कई बार क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेशन जो है हमारे बॉडी सिस्टम में ही प्रेजेंट है कई जगह पे, और कई बार क्या होता है ये जो ड्रग, ये हमारे एज अ ड्रग भी यूज़ होती हैं। सो कॉम्प्लेक्सेशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, पहला आप देखो एंजाइम्स। कितने एंजाइम हैं हमारे जो बॉडी में मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लाइक साइक्लोक्रोम P450 की बात करो, उसमें फेरस आयन प्रेजेंट होता है।
सो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। अब नेक्स्ट हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन, और किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, हीम के साथ। हीम हमारा जो पिगमेंट है और आयरन जो है वो मेटल है। सो ये जो एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन दैट इज़ फाउंड इन द बॉडी सिस्टम। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, साइनोकोबैलामिन। ये हमारा विटामिन B12 है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, और इसमें भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है बॉडी में, जो ये हमारा साइनोकोबैलामिन है इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। सो ये सारे कैसे एग्जाम्पल हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट हैं और कॉम्प्लेक्सेशन से बने हुए हैं, एंड दे आर प्रेजेंटिंग द एग्जाम्पल फॉर द कॉम्प्लेक्सेशन। नाउ सी देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर द ड्रग्स। ये कैसे यूज़ होती हैं ड्रग्स, ये एंटीडोट की तरह यूज़ होती हैं। लाइक पहली बात करते हैं डाइमरकैप्रोल, ये एक ड्रग है और एंटीडोट की तरह यूज़ करते हैं हम इसको, किसकी पॉइजनिंग में, आर्सेनिक की पॉइजनिंग में, मर्करी की पॉइजनिंग में, या फिर गोल्ड पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं इसको। और ये जो ड्रग है हमारी सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रही है इन मेटल्स के साथ। जब बॉडी में इनकी पॉइजनिंग होगी सो डाइमरकैप्रोल हम एंटीडोट की तरह इंट्रामस्कुलरली देंगे, और जब डाइमरकैप्रोल है ये हमारा जो है इसके साथ में जो है वो बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा डाइमरकैप्रोल। ये आर्सेनिक बॉल कॉम्प्लेक्स मैंने दिया हुआ, ये देखो लेड के साथ इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, ये आर्सेनिक के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाया। सो ये बॉल क्या है, ब्रिटिश एंटीमनी ल्यूसाइड, और इसका अनदर नेम अभी मैंने बताया आपको, ये है डाइमरकैप्रोल। सो ये जो बना रहा था ये रिंग स्ट्रक्चर, ये कैसा है, वाटर सॉल्युबल, और ये फिर हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा बॉडी से। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज पेनिसिलेमाइन। ये भी हमारा जो है ड्रग है, एज एन एंटीडोट हम यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विल्सन डिसीज़। विल्सन डिसीज़ में भी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। और ये पॉइजनिंग किसकी पॉइजनिंग में यूज़ कर रहे हैं हम इसको, लेड पॉइजनिंग में पेनिसिलेमाइन को यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इज डाइसोडियम ईडिटेट। ये किसकी पॉइजनिंग में यूज़ कर रहे हैं हम, लेड एंड वैनेडियम पॉइजनिंग में हम यूज़ करते हैं इसको। वी यूज़ दिस इन दी लेड एंड वैनेडियम पॉइजनिंग, और ये भी वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और बॉडी से पास आउट हो जाता है थ्रू दी यूरिन। अब जो कॉम्प्लेक्सेशन का जो अनदर एग्जाम्पल है वो ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। मतलब हमने कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी टेंडेंसी होती है जो मेटालिक आयंस हैं उनके साथ में ये कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। तो ये कैसे बनाती हैं, लाइक टेट्रासाइक्लिन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और ये किस किस के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकती है, इट हैज़ द टेंडेंसी टू मेक द कॉम्प्लेक्स विद द कैल्शियम आयन, विद द मैग्नीशियम आयन, with iron and this aluminium. So if we are going to give the tetracycline in the patient, so हमने क्या ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशन रखनी है। सो ऐसी प्रिपरेशन जिनमें कैल्शियम प्रेजेंट हो, जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट हो, जिसमें हमारे पास ये आयरन प्रेजेंट हो, और जिसमें हमारे पास जो है कि एल्यूमिनियम प्रेजेंट हो, ऐसी प्रिपरेशंस को हमने इसके साथ को एडमिनिस्टर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अगर हम मिल्क लाइक देते हैं तो कैल्शियम उसमें प्रेजेंट होगा, और जो हमारी टेट्रासाइक्लिन है इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी, और इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो जाएगा। जो इसका एब्जॉर्प्शन है कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से वो डिले हो जाएगा। और सेकेंडली अगर हमारी कोई प्रिपरेशन है लाइक एंटासिड है, एंटासिड में कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। सो अगर हम एंटासिड के साथ इसे टेट्रासाइक्लिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सो दैट मीन्स इट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगा। तो हमने मिल्क प्रिपरेशन के साथ प्लस एंटासिड प्रिपरेशन के साथ एंड मोर ओवर विद द आयरन प्रिपरेशंस ऑल्सो we should not co-administer tetracycline because it will delay the tetracycline absorption, इसका डिले हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। अब आप देखो कॉम्प्लेक्सेशन के ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये पेनिसिलेमाइन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और कैसे पेनिसिलेमाइन कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ये रिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है जिसे हम चीलेट कह रहे थे, और प्लस ये वाटर सॉल्युबल भी होता है, तो फिर उस चीलेट को हम सिक्वेस्टरिंग एजेंट कहने लगते हैं। ये हमारा लेड के साथ में ये हमारा EDTA है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ये भी रिंग स्ट्रक्चर है, ये आप देखो ये रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये चीलेटिंग एजेंट है, चीलेट है, और चीलेट क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो इसे हम कहते हैं सिक्वेस्टर।
सो सिक्वेस्टरिंग एजेंट, EDTA क्या है, ये सिक्वेस्टरिंग एजेंट। अब ये आर्सेनिक है बॉल, ये बॉल क्या है, डाइमर कैपरोल, ये आर्सेनिक की पॉइजनिंग में यूज़ होता है और आर्सेनिक के साथ क्या बना रहा है, रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, ये रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है आर्सेनिक के साथ। सो ये जो आर्सेनिक बॉल कॉम्प्लेक्स बन रहा है इट इज़ ऑल्सो वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो बॉल है ये भी कैसा है, सिक्वेस्टरिंग एजेंट है, या फिर वी कैन से ये चीलेटिंग एजेंट है। सो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे ये एज अ ड्रग और एज अ एंटीडोट हम कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट उस मैकेनिज्म पे काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज़ प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, जब हमारी ड्रग जो है, जब बॉडी सिस्टम में जो प्रेजेंट है प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा में, उनके साथ बाइंडिंग करती है तो उसको हम कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। So protein binding of a drug is defined as reversible binding of drug with the protein in the body. बॉडी प्रोटीन्स के साथ में जब रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है ड्रग की उसको हम कहते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। और प्रोटीन बाइंडिंग को हम परसेंटेज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट विद द परसेंटेज। तो ड्रग की बाइंडिंग किस किस के साथ हो सकती है, दीज आर दी प्रोटीन्स, सीरम एल्ब्यूमिन, देन ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन्स। ये 3 टाइप्स के प्रोटीन्स हैं, 4 टाइप्स के, जिनके साथ हमारी ड्रग जो है बाइंड करती है। लेकिन जो प्रोटीन बाइंडिंग है हमारी, उसको ड्रग के एब्जॉर्प्शन को कैसे अफेक्ट कर रही है। सो जो प्रोटीन बाइंडिंग अगर ड्रग की हो रही है तो ये ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, फिर ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, ड्रग के एलिमिनेशन को, और इवन ड्रग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको भी अफेक्ट करती है ड्रग के, कि कितना फार्माकोलॉजिकल एक्शन आएगा। क्यों, क्योंकि ओनली जो अनबाउंड ड्रग है, मतलब अगर ड्रग प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाती है सो ड्रग का जो है साइज इंक्रीज हो जाता है, मोलिकुलर साइज ऑफ द ड्रग इंक्रीजेज। और अगर ड्रग का साइज इंक्रीज होगा देन इट विल नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेगी, सो एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा, एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्टेड होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड होगा तो उसकी जो टारगेट्स का साथ बाइंडिंग है वो भी कम होगी। जब टारगेट के साथ बाइंडिंग कम होगी तो थेरेपेटिक इफेक्ट में कमी आएगी, और थेरेपेटिक इफेक्ट के बाद एलिमिनेशन भी अफेक्टेड होगा, उसमें भी उसको टाइम लगेगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं किससे अफेक्ट हो रही हैं, प्रोटीन बाइंडिंग से। सो प्रोटीन बाइंडिंग, जितनी ड्रग अनबाउंड होती है, जो ड्रग प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं हो रही, ओनली वही ड्रग है जो एब्जॉर्प्शन के लिए, एलिमिनेशन के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए अवेलेबल है। बाउंडेड ड्रग कुछ भी नहीं करेगी। जो बाउंडेड ड्रग है जब तक वो वहाँ बाइंडिंग साइट से रिलीज नहीं होती तब तक वो अपना कुछ भी एक्शन, कुछ भी उसके साथ फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं होगी। और जो ऐसा एक एग्जाम्पल है ये वारफेरिन है, ये एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है, और ये ड्रग, इसका सिर्फ 3% ड्रग जो है वो अनबाउंडेड है, और यही 3% ड्रग जो है वो अवेलेबल है फॉर द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। नाउ कम्स टू दीज आर दी रेफ ओके। तो सो जो प्रोटीन बाइंडिंग है इसमें हम जो ग्लोबुलिन है, जो मैंने अभी पैरामीटर बताया था ग्लोबुलिन, जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन ये हमारी सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, इसके साथ हमारी जो ड्रग है वो ऑलमोस्ट 50% जो ड्रग्स हैं वो हमारी इस सीरम एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं। तो जितनी भी हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी की ड्रग होती हैं, जिनकी वीकली एसिडिक नेचर है, सो वो ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो सीरम एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं। जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं वो 50% ड्रग ऐसी हैं जो सीरम एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं। सो हम जब अगर ड्रग्स की बात करें, बाइंडिंग ऑफ द ड्रग्स, तो मैक्सिमम ड्रग जो बाइंड करती हैं वो सीरम एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करती हैं। फिर उनकी बाइंडिंग किसके साथ होती है, ग्लाइकोप्रोटीन के साथ होती है, फिर उसकी बाइंडिंग होती है लिपोप्रोटीन के साथ होती है, और फिर अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन्स के साथ होती है। सो ये जो प्रोटीन बाइंडिंग है, तो ये जो हमारी एल्ब्यूमिन के साथ ड्रग बाइंड कर रही है, लाइक एल्ब्यूमिन के साथ ड्रग ने बाइंड किया प्लस ड्रग ये बाइंड हो गई। सो तो ये ड्रग का जो जितना हमारा साइज था, अब ये बाइंड होने के बाद क्या बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना, इसका कॉम्प्लेक्स बना रहा है ये ड्रग एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स। सो ये कॉम्प्लेक्स का जो साइज़ है वो इन्हांस हो जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स का साइज़ इन्हांस हो गया, जो मेम्ब्रेन है इसको ये क्रॉस नहीं करेगा, ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। बट हम कह रहे हैं कि ये रिवर्सिबल बाइंडिंग है, तो ये थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ड्रग यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। कुछ टाइम बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ड्रग विल रिलीज फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स, यहाँ से मूव आउट हो जाएगी
और जो अनबाउंड ड्रग है जो रिलीज हुई है वो हमारी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। सो ओनली अनबाउंड ड्रग, ये मैं बोल रही हूँ, जो अनबाउंड ड्रग है वही हमारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए अवेलेबल है। सो जैसे जैसे ड्रग रिलीज होती है प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, ये क्रॉस करती है सेल मेम्ब्रेन को और अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है। अब जो ड्रग है जितने टाइम तक उसके साथ बाइंड रहेगी इतने कोई एक्शन शो नहीं करेगी। जब एक्शन शो नहीं करेगी तो उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। जो ड्रग की हाफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी, और हाफ लाइफ इंक्रीज होने का मतलब है कि जो ड्रग का हमारी बॉडी में एक्शन का ड्यूरेशन है दैट विल बी एनहांस्ड। जो ड्रग का एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दैट विल बी एनहांस्ड बाय द प्रोटीन बाइंडिंग। जितनी ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होगी ड्रग की उतना ही ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का ज़्यादा होगा, उतना ही देर तक ड्रग जो है वो हमारी वहाँ पर बॉडी के अंदर रहेगी और उतना ही लंबे टाइम तक, उतना ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ड्रग इफ़ेक्टिव होगी। सो ड्रग की जो हमारी एक्टिविटी है दैट विल डिपेंड हाउ मच ड्रग इज़ नॉट बाउंडेड टू दी प्रोटीन। अगर वो ड्रग बाउंड रहती है प्रोटीन पे सो वो अपना एक्शन शो नहीं करेगी। So in this complexation I was telling you enzymes. So enzyme कितने enzymes हैं जो हमारे एक्टिवेट ही होते हैं कि वो एक्टिवेट ही हो रहे हैं कि जब हम किसी मेटल के साथ में अटैच हो जाते हैं तो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। इवन कुछ ऐसे होते हैं हैवी मेटल्स टाइप जो है जब एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं तो एंजाइम को क्या कर देते हैं वो फिर हम इनहिबिशन कर देते हैं। सो एंजाइम का जो इंडक्शन है, जो एंजाइम का इनहिबिशन है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्सेशन, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है कॉम्प्लेक्सेशन में। सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं एंजाइम्स हैं जो मेटल आयन के साथ वो बना रहे हैं, या हीमोग्लोबिन है या साइनोकोबैलामिन है, विटामिन B12, ये बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट हैं, जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट है वो कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं डाइमर कैप्रोल ये एंटीडोट की तरह यूज़ हो रहा है, पेनिसिलिमाइन ये भी एक एंटीडोट एंड ड्रग की तरह यूज़ हो रहा है, डाइसोडियम एडिटेट ये भी एक ड्रग की तरह यूज़ हो रहा है, ये हमारी हैवी मेटल पॉइजनिंग में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, so these are the physicochemical parameters of the drug, and for this lecture these are the references, and thank you.